ایک شریف نوجوان جسے قدم قدم پر سنگسار کیا گیا۔ ظالم معاشرے کی ناانصافیوں، کرپٹ پولیس اور دولت مند بدماشوں نے اسے بھی ایک غنڈہ بننے پر مجبور کر دیا۔ اور جب ایک شریف انسان جرائم پیشہ بن جائے تو وہ سب غنڈوں سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایک بدقسمت نوجوان جسے جرم کی دلدل نے ایک آتش فشاں بنا دیا۔ بدلے کی آگ میں جلتے ایک شریف نوجوان کی کہانی۔ ملک شہباز کا ایک مکان وانا میں بھی تھا۔ وہ اپنے مکان کے سلسلے میں اکثر وانا آتا رہتا تھا اور اپنے مکان میں ہی ٹھہرتا تھا۔ مکان کی دیکھ بھال اور اپنے کام کاج کے لیے اس نے ایک ملازم رکھا ہوا تھا۔ ایک روز پہلے اس نے اپنے ملازم کو اپنے آنے کی اطلاع بھجوا دی اور غالباً یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ مہمان بھی ہوں گے۔ اس نے کھانے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ ملک شہباز کا یہ مکان آبادی سے تقریباً نصف میل دور ایک ٹیلے پر واقع تھا۔ حویلی نما یہ مکان خاصا وسیع و عریض تھا جسے چاروں طرف سے بلند فصیل نے گھیر رکھا تھا۔ اس چار دیواری کے ایک طرف پتھروں سے بنی ہوئی عمارت تھی اور اس کے سامنے وسیع و عریض لان تھا۔ درختوں کی بھی بہتات تھی۔ لان اور درختوں کو سرسبز رکھنے کے لیے پانی کا بھی معقول انتظام تھا۔ ایک پتھریلا راستہ شہر سے اس مکان تک چلا گیا تھا۔ قرب و جوار کے ٹیلوں پر بھی مکان نظر آ رہے تھے۔ قریب ترین مکان بھی وہاں سے کم از کم 100 گز کے فاصلے پر تھا۔ وہ لوگ حویلی تک پیدل ہی آئے تھے۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی شارق وغیرہ نے دیکھا ایک طرف ایک کھٹارا سی کار کھڑی تھی جس کے ٹائروں کی ہوا نکلی ہوئی تھی۔ قریب سے گزرتے ہوئے شارق نے اندر جھانکا۔ اس کی سیٹیں بھی غائب تھیں۔ برآمدے میں لمبا تڑنگا سا ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کی عمر 40 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ خاصا صحت مند آدمی تھا۔ وہ ملک شہباز کا ملازم احمد خان تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی لیکن ٹوتھ برش ٹائپ کی مونچھیں خاصی باروب تھیں۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر ملک شہباز کے ہاتھوں سے بیگ لے لیا اور مانی خیز نظروں سے سمینہ اور شاہ پری کی طرف دیکھنے لگا۔ شارق وغیرہ کی طرف بھی اس نے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ وہ لوگ اندر آ گئے۔ یہ کمرہ خاصا وسیع و عریض تھا۔ فرش پر دبیز قالین بچھے ہوئے تھے اور ریشمی غلاف والے گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ ملک شہباز نے شارق وغیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ لوگ منہ ہاتھ دھو لیں تو چائے پی جائے۔ پھر احمد خان کی طرف دیکھ کر بولا، احمد خان ان کے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ احمد خان نے سر ہلایا، بولا جی ملک جی۔ وہ لوگ اسی کے ساتھ کمرے سے نکل کر مکان کے پچھلی طرف آ گئے۔ اس طرف بھی برآمدہ تھا۔ ایک طرف پانی کے 2 ڈرم رکھے تھے جن میں ٹوٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے قریب ہی ایک پتھر پر صابن تھا۔ احمد خان بولا، آپ لوگ یہاں ہاتھ منہ دھو لیں، میں تولیہ لے کر آتا ہوں۔ پہلے شاہ پری نے منہ ہاتھ دھویا، پھر سمینہ نے، اس کے بعد نولکھے وغیرہ نے۔ اس دوران احمد خان ایک تولیہ سا لے آیا۔ اس نے تولیہ شاہ پری کی طرف بڑھا دیا۔ اس وقت نہ شاہ پری کے سر پر چادر تھی اور نہ ہی سمینہ کے سر پر۔ احمد خان ان کے سامنے کھڑا ہوس بھری نظروں سے باری باری ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس وقت شام کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ مکان کے پچھلی طرف بھی درختوں کی بہتات تھی۔ تاریکی میں تیز ہوا سے جھومتے ہوئے درختوں کے سائے بڑے پراسرار لگ رہے تھے۔ جب وہ لوگ دوبارہ اس کمرے میں پہنچے تو ملک شہباز وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ لوگ قالین پر بیٹھ گئے۔ نولکھا، سمینہ اور شاہ پری تو لیٹ گئیں۔ وہ لوگ طویل عرصے تک بنجر اور ویران پہاڑوں میں بھٹکتے رہے تھے۔ ہزاروں فٹ بلند پہاڑوں پر چڑھے تھے لیکن اتنی تھکن کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی آج محسوس کر رہے تھے۔ دن بھر کے سفر نے انہیں بری طرح تھکا دیا تھا۔ سمینہ تو قالین پر لیٹتے ہی اونگنے لگی۔ نولکھے کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد ملک شہباز بھی وہاں گیا اور اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد احمد خان چائے لے کر آیا۔ باتوں کی آواز سن کر سمینہ اور نولکھا بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ چائے پینے کے دوران وہ باتیں کرتے رہے۔ ملک شہباز انہیں وانا اور ساؤتھ وزیرستان کے بارے میں بتا رہا تھا۔ پھر بولا، مجھے ایک ضروری کام سے شہر جانا ہے، تم لوگ آرام کرو، میں 8:30-9 بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ اس وقت تک کھانا بھی تیار ہو چکا ہوگا۔ اور ہاں، کسی بات سے ڈرنے یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تم لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو احمد خان کو بتا دینا۔ ملک شہباز اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ باہر جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد احمد خان نے چائے کے برتن اٹھا لیے اور شارق وغیرہ ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گئے۔ نولکھے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شارق بہو یہاں ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں ہوگا؟ شارق بولا، امید تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ ہمیں زیادہ محتاط رہنا پڑے گا کیونکہ اب اپنے دفاع کے لیے ہمارے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے۔ محمد عمر نے کہا، میرے پاس شکاری چاقو موجود ہے۔ شاہ پری نے کہا، میرے پاس بھی خنجر ہے۔ شاہ پری نے پنڈلی کے ساتھ بندھا ہوا خنجر دکھایا۔ شارق نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر کوئی ناموافق صورتحال ہوئی تو کیا تمہارے خیال میں ہم صرف ایک چاقو اور خنجر سے اپنا دفاع کر سکیں گے؟ محمد عمر نے کہا، یہ تو وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ ویسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔
शारिक ने कोई जवाब न दिया, लेकिन वो सोच रहा था कि अगर वाकई कोई ऐसी नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो गई तो वो अपना दिफा कर सकेंगे या नहीं। उसे सबसे बड़ा खतरा समीना और शाहपरी की तरफ से था। हर शख्स की नजरें उनकी तरफ उठ जाती थीं। यहाँ आते ही उसने अहमद खान की नजरों को भी देख लिया था। उसे शहबाज खान की नजरों में भी वही कुछ नजर आया था। अगर उसकी नीयत में फतूर आ गया तो गड़बड़ हो सकती है। मलिक शहबाज खान यहीं का रहने वाला था। मिलिशिया के अफसरान से उसके ताल्लुकात थे। पॉलिटिकल हुकाम से भी उसके गहरे रवाबित थे। वो उनके खिलाफ बहुत कुछ कर सकता था। यह भी हो सकता था कि वो शारिक, मोहम्मद उमर और नौलखे को तो पॉलिटिकल हुकाम के हवाले कर दे और उन दोनों लड़कियों पर कब्जा जमा ले। उन लोगों के खिलाफ कोई भी इल्जाम आयद किया जा सकता था। वो अगरचे पाकिस्तानी शहरी थे, लेकिन गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके आए थे और अफगानिस्तान में कत्लो गारत भी कर चुके थे। मजीद बरा अगर उनके खिलाफ तहकीकात की जाती तो बात बहुत दूर निकल सकती थी। सिर्फ लाहौर में उनके खिलाफ इतने केसेस थे कि कई जन्म लेने के बाद भी सजा पूरी न होती। ये वो खदशात थे जो शारिक के जहन में जन्म ले रहे थे। वो सोच रहा था कि अगर कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो गई तो हर सूरत में उससे निपटना होगा। किसी ऐसी सूरत हाल से बचने का एक तरीका यह भी था कि वो लोग खामोशी से यहाँ से निकल जाएं, लेकिन ऐसा करना मुमकिन नहीं था। वाना कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ वो रूपोशी इख्तियार कर सकते। कस्बा नुमा एक छोटा सा शहर था जिसकी तमाम तरह आबादी कबाइलियों पर मुश्तमिल थी। किसी गैर कबाइली के लिए अपने आप को यहाँ छुपाना बहुत मुश्किल था। बस से उतरने के बाद वो यहाँ के रिहायशी होटल भी देख चुके थे। सराय नुमा होटल थे और वो अपने आप को दूसरों की नजरों से नहीं छुपा सकते थे। कोई और ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पनाह ली जाती। यहाँ से भाग भी नहीं सकते थे। मुख्तलिफ इलाकों को जाने वाली बसें यहाँ से आगे पीछे सुबह सवेरे ही निकल जाती थीं। रात को किसी तरफ कोई बस नहीं जाती थी। शारिक ने इधर उधर देखा, उसके सारे साथी ऊँघ रहे थे। वो उठकर कमरे से निकला और टहलता हुआ बावर्ची खाने में आ गया, जहाँ अहमद खान खाना तैयार कर रहा था। बावर्ची खाना खासा कुशादा था। चूल्हे में लकड़ियाँ इस्तेमाल होती थीं। धुएं से तमाम दीवारें काली हो रही थीं। अहमद खान उसे देखकर मुस्कुरा दिया। शारिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक बात बताओ अहमद खान, यहाँ से बसें कहाँ कहाँ जाती हैं? अहमद खान ने कहा, एक बस तो उस तरफ जाती है जिस तरफ से तुम लोग आए हो। एक बस शुमाली वजीरिस्तान में मैदान शाह की तरफ और एक बस तनाई पोस्ट से होती हुई फोर्ट सेंडिमन की तरफ जाती है, जबकि एक और बस तनाई पोस्ट से होती हुई टांक और डेरा इस्माइल की तरफ जाती है। ये तमाम बसें सुबह 6 बजे से पहले निकल जाती हैं। इन्हीं इलाकों से आने वाली कुछ बसें दोपहर के वक्त यहाँ पहुँचती हैं, जो थोड़ी देर रुकने के बाद अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाती हैं। इनके अलावा करीबी बस्तियों के लिए बसें चलती रहती हैं, लेकिन शाम से पहले पहले ये बसें बंद हो जाती हैं। शारिक ने पूछा, यहाँ रात को बसें नहीं चलती? अहमद खान ने नफी में सर हिलाया, बोला, नहीं, रास्ते बड़े खतरनाक हैं, इसलिए इन इलाकों में सफर दिन के वक्त ही होता है। शाम होने तक तमाम बसें अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंच जाती हैं। रात को कोई बस नहीं चलती। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोला, और ट्रक वगैरह? मलिक शहबाज ने बताया था कि इन इलाकों में चीड़ के दरख्तों की बहुतात है और लकड़ियां काट काट कर ट्रकों पर शहरों में भेजी जाती हैं। ट्रक तो मेरा ख्याल है कि रात को भी चलते होंगे। अहमद खान ने कहा, हाँ, इक्का दुक्का ट्रक चलते रहते हैं, लेकिन हादसात भी होते रहते हैं। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? शारिक ने कहा, बस यूं ही कुछ मालूमात होनी चाहिए ना। ये कहकर वो बावर्ची खाने से निकल आया। वो घूम फिर कर मकान देखता रहा। कई कमरे थे। 2-3 कमरे ऐसे थे जिनमें कालीन बिछे हुए थे और कुछ सामान मौजूद था, जबकि बाकी कमरे खाली थे और उनके फर्श पर गर्द जमी हुई थी। कुछ देर के बाद वो मकान से बाहर आ गया और बरामदे में खड़े होकर आसपास देखने लगा। नशेब में शहर की जगमगाती हुई रोशनियां नजर आ रही थीं। इन रोशनियों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि शहर कहाँ तक था और उसकी आबादी किस कदर फैली हुई थी। थोड़ी देर के बाद अहमद खान भी बरामदे में आ गया। उसने 2 केरोसिन लैंप उठा रखे थे। वो लैंप फर्श पर रख कर उनकी सफाई करने लगा। शारिक ने कहा, यहाँ बिजली मौजूद है तो लैंप की क्या जरूरत है? अहमद खान ने कहा, शहरों की तरह यहाँ 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। रात 11 बजे बिजली बंद कर दी जाती है, फिर सुबह 5 बजे खुलती है। शारिक वहीं खड़ा इधर उधर देखता रहा। वो अब भी यही सोच रहा था कि किसी हंगामी सूरत हाल में यहाँ से किस तरह निकला जाएगा। लेकिन अहमद खान ने बसों की जो सूरत हाल बताई थी, उसके पेश नज़र रात को यहाँ से कहीं भी जाना मुमकिन नहीं था। वो दोबारा कमरे में आ गया। उसके सारे साथी अब भी ऊँघ रहे थे। शारिक भी एक गाँव तकिए से टेक लगाकर नीम दराज हो गया। तकरीबन आधे घंटे के बाद उसे बरामदे की तरफ से बातों की आवाज़ सुनाई दी। उसके चंद सेकंड के बाद कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसके थोड़ी ही देर के बाद मलिक शहबाज 2 आदमियों के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उन्हें देखकर शारिक के दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। मलिक शहबाज के साथ आने वाले दोनों आदमी मिलिशिया के अफसरों की वर्दी में थे। मिलिशिया की सुरमई रंग की शलवार कमीज, पिशावरी चप्पल और सरों पर चित्राली किस्म की टोपियां। दोनों ने चौड़े बेल्ट लगा रखे थे
और होल्स्ट्रों में रिवॉल्वर नजर आ रहे थे। मलिक शहबाज ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, डरो नहीं, ये दोनों ऑफिसर मेरे दोस्त हैं, ये रहमान खान और हबीबुल्ला। उसने दोनों का तारुफ करवाया, फिर बोला, मैं जब भी वाना आता हूँ इनसे मेरी मुलाकात जरूर होती है। हम कम से कम एक वक्त का खाना इकट्ठे खाते हैं। कल चूंकि मेरा दिन बहुत मसरूफियत में गुजरेगा, इसलिए मैंने इन्हें आज ही खाने पर बुला लिया है और मेरा ख्याल है तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। शारिक ने कहा, मुझे क्या एतराज हो सकता है। वो बारी बारी उन दोनों अफसरों की तरफ देख रहा था। उसे अपने बदतरीन खदशात पूरे होते हुए नजर आ रहे थे। उसने अखलाक का मुजाहिरा करते हुए उठकर दोनों से हाथ मिलाया। उनकी बातों की आवाज सुनकर समीना और नौलखा वगैरह भी जाग गए। मिलिशिया के उन अफसरों को देखकर समीना को सीने में अपना सांस रुकता सा महसूस हुआ। वो दोनों ऑफिसर भी कालीन पर बैठ गए। मलिक शहबाज उन्हें बातें करता छोड़कर कमरे से बाहर आ गया। शारिक ने यह बात फौरन ही महसूस कर ली कि वो दोनों ऑफिसर अजीब सी नजरों से समीना और शाहपरी की तरफ देख रहे थे। समीना और शाहपरी ने भी उनकी नजरों को महसूस कर लिया था। उन्होंने करीब पड़ी हुई चादरें उठाकर इस तरह लपेट ली कि उनके जिस्म पूरी तरह छुप गए। तकरीबन आधे घंटे के बाद मलिक शहबाज वापस आ गया। उसने बताया कि खाना लग गया है। वो लोग उठकर साथ वाले कमरे में आ गए, जहां कालीन पर दस्तरखान बिछा हुआ था और पुरतकल्लुफ खाना चुना हुआ था। खाने में बकरे का गोश्त भी था और मुर्गी का भी। शारिक रगबत से खाना नहीं खा रहा था। वो सोच रहा था कि मुमकिना गड़बड़ से किस तरह निपटा जा सकता है। उसने मोहम्मद उमर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी कुछ ऐसे ही तासुरात थे। समीना और शाहपरी भी खामोश थी। हालांकि आमतौर पर चाय के दौरान गपशप होती रहती थी। वो दोनों इस तरह बैठी हुई थी जैसे उन्हें जबरदस्ती बिठाया गया हो। खाने के बाद वो लोग दोबारा उस कमरे में आ गए। कुछ देर के बाद अहमद खान चाय ले आया। चाय के दौरान भी गपशप होती रही। उन दोनों अफसरों का अंदाज अगरचे दोस्ताना और बेतकल्लुफ था, लेकिन शारिक मुतमईन नहीं था। उसके दिल में तरह तरह के वसवसे जन्म ले रहे थे और छठी हिस्स किसी गड़बड़ का एहसास दिला रही थी। 11 बज गए। अचानक ही बत्ती जलने बुझने लगी। शारिक बल्ब की तरफ देखने लगा। उसे अचानक ही अहमद खान की कही हुई बात याद आ गई। उसने बताया था कि रात 11 बजे बत्ती बंद हो जाती है। ये गोया एक तरह का सिग्नल था कि लोग केरोसिन लैंप जला लें। बत्ती 2-3 मरतबा वक्फे से जली बुझी और फिर एकदम तारीकी छा गई। मलिक शहबाज ने अहमद खान को पुकारते हुए कहा, अहमद खान, लैंप नहीं जलाया तुमने अभी तक? कमरे के बाहर से अहमद खान की आवाज आई, जला रहा हूँ। शारिक ने बेचैनी से अपनी जगह पर पहलू बदला और आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ सरकने लगा जिस तरफ समीना और शाहपरी बैठी हुई थी। अचानक ही उसे शाहपरी की हल्की सी चीख सुनाई दी, कौन हो तुम, छोड़ो मुझे। शारिक एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसे समझने में देर न लगी कि खेल शुरू हो चुका है। उसी लम्हे यूं लगा जैसे वहां धींगा मुश्ती शुरू हो गई है। शाहपरी के साथ अब समीना की भी आवाजें सुनाई देने लगी। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? शारिक बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। वो किसी से टकराया। उसने फौरन ही टकराने वाले को गिरफ्त में ले लिया, लेकिन उसे फौरन ही एहसास हो गया कि उसने समीना को पकड़ा था। उसके साथ ही उसे यह भी पता चल गया कि कोई और भी समीना को गिरफ्त में लिए हुए था, जो उसे दरवाजे की तरफ खींच रहा था। शारिक ने समीना को छोड़कर उस शख्स को गिरफ्त में ले लिया। वो मिलिशिया का एक ऑफिसर था। शारिक उससे गुत्थम गुत्था हो गया। वो दोनों कालीन पर लुढ़कने लगे। दूसरी तरफ से भी धींगा मुश्ती की आवाजें आ रही थीं। शारिक ने अपने हरीफ को गिरफ्त में ले रखा था। वो अगरचे शारिक से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन वो शारिक के काबू में आ गया था। उसी लम्हे दरवाजे के बाहर राहदारी में मध्यम सी रोशनी नजर आई। अहमद खान लैंप लेकर उसी तरफ आ रहा था। रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा था। मलेशिया ऑफिसर रहमान खान शाहपरी को घसीटता हुआ दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। वो उसे कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ मोहम्मद उमर मलिक शहबाज से उलझा हुआ था। नौलखा एक तरफ खड़ा हवन्नकों की तरह इधर उधर देख रहा था और फिर दफतन उसने रहमान खान की तरफ छलांग लगा दी। रहमान खान ने शाहपरी को दबोच रखा था। खींचातानी में शाहपरी के कपड़े फट गए। नौलखा किसी चीते की तरह रहमान खान पर झपटा। उसने एक बाजू रहमान खान की गर्दन पर लपेट दिया और उसे पीछे खींचने लगा। रहमान ने शाहपरी को भी पकड़ रखा था और वो उसे अपने साथ घसीट रहा था। इस खींचातानी में शाहपरी का हाथ रहमान खान के रिवॉल्वर के दस्ते पर पड़ गया। उसने बड़ी फुर्ती से रिवॉल्वर खींच लिया और ट्रिगर दबा दिया। फायर की आवाज के साथ ही रहमान खान की चीख की भी आवाज गूंजी। गोली उसके पेट में लगी थी। उसने शाहपरी को छोड़ दिया और शाहपरी एक झटके से उठकर पीछे हट गई। रहमान की गर्दन अब भी नौलखे की गिरफ्त में थी। रहमान खान को तड़पते देखकर नौलखे ने उसे छोड़ दिया। शाहपरी की आंखों में खून उतर आया था। उसके चेहरे पर बेपनाह सफाकी थी। उसने रिवॉल्वर का रुख रहमान खान के सीने की तरफ करके पै दर पै 2-3 मरतबा ट्रिगर दबा दिया। गोलियां रहमान खान के सीने में लगी और खून के फव्वारे उबल पड़े। दूसरी तरफ मलिक शहबाज और मोहम्मद उमर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे। मोहम्मद उमर ने मलिक शहबाज को दबोच रखा था। इस दौरान मलिक शहबाज को जेब में हाथ डालने का मौका मिल गया। उसके फौरन ही बाद एक साथ कमरे में फायर और मोहम्मद उमर की चीख की आवाज गूंजी। शहबाज खान ने जेब में रखे हुए पिस्तौल का ट्रिगर दबा दिया था।
और गोली मोहम्मद उमर के पेट में लगी थी। वो मलिक शहबाज को छोड़कर पीछे उलट गया। मलिक शहबाज ने दूसरी गोली चला दी। गोली इस मर्तबा मोहम्मद उमर की पेशानी पर लगी और वो ढेर हो गया। मलिक शहबाज उछल कर खड़ा हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो तीसरी गोली चला सकता, शाहपरी ने यक के बाद दीगरे 2 गोलियां चलाईं। दोनों गोलियां उसके सीने में लगीं और वो भी चीखता हुआ ढेर हो गया। मलिक शहबाज का मुलाजिम अहमद खान लैंप दरवाजे के सामने जमीन पर रख चुका था। वो अपने आका की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता था, मगर सूरत हाल देखकर वो चीखता हुआ बाहर दौड़ा। नौलक्खे ने उसके पीछे छलांग लगाई। उसे एहसास हो गया था कि अगर अहमद खान बचकर इस मकान से निकल गया तो उनकी अपनी जिंदगियों की कोई जमानत नहीं दी जा सकती। अहमद खान बरामदे में पहुंच चुका था। नौलक्खे ने दूर ही से छलांग लगा दी और हवा में उड़ता हुआ उसके ऊपर जा गिरा। अहमद खान के मुंह से हल्की सी चीख निकली। वो दोनों जमीन पर गिरे। अहमद खान अगरचे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन नौलक्खे पर जुनून की सी कैफियत थी। उसने अहमद खान को बुरी तरह दबोच रखा था। कमरे के अंदर मलिशिया ऑफिसर हबीबुल्ला और शारिक एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे थे। समीना और शाहपरी करीब खड़ी थी। हबीबुल्ला अपना दिफा करने के साथ साथ होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालने की कोशिश कर रहा था। समीना सूरत हाल का अंदाजा लगाते ही आगे बढ़ी और उसने फुर्ती से हबीबुल्ला के होल्स्टर से रिवॉल्वर खींच लिया और रिवॉल्वर की नाल की तरफ से पकड़कर दस्ते से उसके सर पर जर्ब लगाई। हबीबुल्ला के मुंह से चीख निकली। उसने शारिक को छोड़ दिया। शारिक एक झटके से उठकर सीधा खड़ा हो गया। हबीबुल्ला भी उठकर खड़ा हो गया। वो एक हाथ से सर को सहला रहा था। वो शारिक की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोगों ने 3 खून किए हैं, बचकर नहीं जा सकोगे। शाहपरी बोली, 3 नहीं 2। हमारे साथी को मलिक शहबाज ने मारा है, लेकिन मैं तेरा भी खून करूंगी और तीसरा खून तेरा होगा। मरने के लिए तैयार हो जा। उसने रिवॉल्वर सीधा किया। इससे पहले कि हबीबुल्ला कुछ कहता, शाहपरी ने ट्रिगर दबा दिया। गोली उसकी पेशानी में लगी और वो मुंह से आवाज निकाले बगैर ढेर हो गया। धींगा मुश्ती की आवाजें सुनकर शारिक बाहर की तरफ दौड़ा। वो ऐन वक्त पर बरामदे में पहुंच गया था। अहमद खान ने नौलक्खे का गला दबोच रखा था। वो पूरी कुव्वत से उसका गला घोंटने की कोशिश कर रहा था और नौलक्खे की आंखें बाहर को उबल पड़ रही थीं। शारिक ने अहमद खान के सर पर जोरदार ठोकर मारी, मगर उस पर कोई असर न हुआ। 2-3 मजीद ठोकरें खाने के बाद भी उसने नौलक्खे का गला न छोड़ा। शारिक ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे पूरी कुव्वत से पीछे खींचने लगा और बिलाखिर अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। अहमद खान ने नौलक्खे का गला छोड़ दिया और अपनी गर्दन बचाने की कोशिश करने लगा। नौलक्खे ने अहमद खान को टांगों से पकड़ लिया और वो दोनों उसे घसीटते हुए कमरे में ले गए। कमरे में 4 लाशें देखकर अहमद खान की आंखें वहशत से उभर आईं। शाहपरी खूंखार नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। फिर उसने अहमद खान के सीने में भी 2 गोलियां बेवस्त कर दी। अहमद खान भी चीखता हुआ रहमान खान की लाश के ऊपर ढेर हो गया। शारिक चंद लम्हे शाहपरी की तरफ देखता रहा। फिर उसने आगे बढ़कर उसके हाथ से रिवॉल्वर ले लिया। शाहपरी उसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। समीना ने आगे बढ़कर शाहपरी को संभाल लिया। शाहपरी तकरीबन 10 मिनट के बाद अपनी कैफियत पर काबू पा सकी थी। अजीब सूरत हाल थी। 5 लाशें पड़ी थीं और कमरे में हर तरफ खून बिखरा हुआ था। शारिक वगैरह शाहपरी को लेकर दूसरे कमरे में आ गए। उस कमरे से निकलने से पहले शारिक ने मलिक शहबाज की जेब से पिस्तौल निकाल लिया। वो लोग कई मिनट तक खामोश बैठे रहे। फिर नौलक्खे ने जबान खोली। वो अफसुर्दा लहजे में बोला, बेचारा मोहम्मद उमर, कई दिन का साथ था हमारा और इसका। मोहम्मद उमर के तस्करे पर शाहपरी और समीना फूट फूट कर रोने लगी। उनका मोहम्मद उमर से खून का कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन उनका कई रोज का साथ रहा था। जिंदगी और मौत के खेल में वो साथ साथ रहे थे। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे उनका सगा भाई बिछड़ गया हो। वो लोग बहुत देर के बाद अपनी कैफियत पर काबू पा सके। शारिक ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, अब सूरत हाल हमारे लिए ज्यादा खतरनाक हो गई है। ये मकान अगरचे आबादी से काफी दूर है, लेकिन हो सकता है गोलियों की आवाजें सुन ली गई हों। अगर कोई सूरत हाल मालूम करने के लिए इस तरफ आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। शाहपरी ने कहा, मेरा ख्याल है इस तरफ कोई नहीं आएगा। गोलियां बंद कमरे के अंदर चली हैं, इनकी आवाज ज्यादा दूर नहीं सुनी गई होगी। शारिक ने कहा, फिर भी हमें मोहतात रहना चाहिए। वो लोग तकरीबन आधे घंटे तक बैठे रहे, लेकिन किसी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने न आया, जिसका मतलब था कि फायरिंग की आवाज वाकई कहीं नहीं सुनी गई थी। अगर कहीं सुनी भी गई थी तो किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। अब उनके लिए सबसे अहम मसला ये था कि लाशों का क्या किया जाए और आइंदा के लिए क्या सोचा जाए। शारिक ने कहा, मेरी राय तो ये है कि हमें सुबह पहली बस से यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने अहमद खान से मालूम कर लिया था, बसें यहाँ से सुबह 6 बजे के लगभग निकलती हैं। बेहतर होगा कि हम 5:30 बजे अड्डे पर पहुंच जाएं और डेरा इस्माइल खान वाली बस पर जगह हासिल करने की कोशिश करें। नौलक्खे ने कहा, लेकिन हमारे बाद कोई यहाँ आ गया और उसने लाशें देख लीं तो क्या होगा? वो लोग तो रास्ते में बसें भी रुकवा लेंगे। शारिक ने कहा, कल शाम को 2-3 आदमियों ने हमें मलिक शहबाज के साथ इस तरफ आते हुए देखा था। हम ज्यादा लोगों की नजरों में नहीं आए। वैसे एक तजवीज है मेरे जहन में। समीना बोली, वो क्या? शारिक ने कहा, मकान के पिछली तरफ गड्ढा खोद कर लाशों को दफन कर दिया जाए और खून आलूद कालीन भी उस गड्ढे में डाल दिया जाए। इस तरह हमें वक्त मिल जाएगा और हम यहाँ से ज्यादा दूर निकल सकेंगे। नौलक्खे ने कहा,
ठीक है, तो फिर गड्ढा खोदने की तैयारी करनी चाहिए। वो लोग उठकर मकान के पिछली तरफ आ गए। एक मुनासिब जगह का इंतखाब करके गड्ढा खोदने लगे। समीना और शापरी भी उनका साथ दे रही थी। जमीन नरम थी और उन्हें गड्ढा खोदने में ज्यादा दुश्वारी न हुई। 4 बजे के लगभग उन्होंने तमाम लाशें उठाकर गड्ढे में डाली, उनके ऊपर कालीन डाल दिए और गड्ढा बंद करके मिट्टी इस तरह बराबर कर दी कि वो जगह फौरी तौर पर नजरों में ना आ सके। लाशों से फारिग होने के बाद वो घर की तलाशी लेने लगे। एक कमरे की अलमारी से उन्हें कपड़े मिल गए। जनाना कपड़े भी मिले थे और मर्दाना भी। जनाना कपड़े देखकर अंदाजा होता था कि मलिक शहबाज के घर वाले भी यहाँ आते रहते थे। उन्होंने मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लिए और समीना और शापरी बावर्ची खाने में आ गई। रात का बचा हुआ खाना गर्म करने के साथ चाय भी बना ली। दोनों मिलिशिया अफसरों मलिक शहबाज के लिबास की तलाशी और घर की तलाशी के दौरान शारिक को पाकिस्तानी करेंसी में कई हजार रुपए मिल गए, जो उसने एहतियात से पास रख लिए। वो लोग 5:15 बजे मलिक शहबाज की हवेली से निकले। उस वक्त दिन का मध्यम उजाला फैलना शुरू हो चुका था।